اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here I am your host Dr. Jamil Rathore and you are watching your favorite program, Quranic religious program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses of Al-Quran. And our today's lesson consists of verse number 8 to 15 of Surah Sad of the 23rd part of Al-Quran. And we start our today's lesson with recitation of Holy Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل
الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما
यंज़ुरु वमा यंज़ुरु हाउलाई हाउलाई इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा सयहतन वाहिदतन वाहिदतन मा लहा मिन फवाक min fawaq. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, as well as, inshallah, in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. And I pray God grant us the capability to recite Holy Quran, understanding it, and act upon it. Amin. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. In Urdu, क्या नाजिल किया गया है इस पर कुरान हमारे दरमियान में से? नहीं, बल्कि ये कुफ्फार शक में मुब्तला हैं मेरे जिक्र के मुताल्लिक, बल्कि इन्होंने अभी नहीं चखा मेरे अजाब का मजा. In English, has the Quran been sent upon him from amongst us all? Nay, rather they are in doubt concerning my book. Nay, they have not yet tasted my chastisement. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. In Urdu, क्या इनके कब्जे में है खजाने आपके रब की रहमत के जो इज्जत वाला है, बेहिसाब अता करने वाला है? In English, are they treasurers of the mercy of your Lord, the dignified, the bestower? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. In Urdu, क्या इनके लिए है सल्तनत आसमानों और जमीन की और जो कुछ इनके दरमियान है? बस इन्हें चाहिए कि चढ़ जाएं आसमान पर इसकी राहों से. In English, is the kingdom of the heavens and earth and what is between them for them?
If so, let them ascend by hanging ropes. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. In Urdu, दर हकीकत कुफ्फार के लश्करों में से ये एक छोटा सा लश्कर है जिसे वहां बद्र में शिकस्त दे दी जाएगी. In English, this is a disgraced host from amongst the Confederates which shall be made to flee to the same place. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. In Urdu, झुटलाया था इनसे पहले कौम नूह, आद और मेखों वाले फिरौन ने. In English, before them, the people of Nuh and Ad and Pharaoh, Pharaoh, the contriver of snakes, have belied the messengers. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. In Urdu, और समूद, कौम लूत और असहाब ऐका ने, यही वो गिरोह हैं जिनका जिक्र पहले गुजर चुका. In English, and Samud, and the people of Lut, and dwellers of the wood. These are those parties. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابي وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. In Urdu, उन सब ने रसूलों को झुटलाया तो उन पर लाजिम हो गया मेरा अजाब, और नहीं इंतजार कर रहे हैं ये कुफ्फार मगर एक कड़क की जिसके बाद कोई मोहलत नहीं होगी. In English, there's none among them but belied the messengers. So my torment became inevitable. They wait not but of a single roaring cry, which no one can turn away. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा और कुफ़ार व मुशरिकीन के एतराज़ात, शुकूक व शुबहात यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं. ये कुफ़ार व मुशरिकीन कहा करते थे हम बड़े बड़े सरदार हैं, हम में बड़े बड़े वडेरे हैं, हम में बड़े बड़े हुक्मरान हैं, हम में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जिनका तुर्रा कभी तुगरा नीचे नहीं आता,
बड़ा तमतराक है, बड़ी शान है, बड़ी शौकत है और बड़े बड़े लोग हैं, उसके बावजूद दुर्र यतीम पर कुरान नाजिल कर दिया गया। उन्ज़िल अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, कि ये कुरान हम में नाजिल किया गया लेकिन हम में छोड़कर इस दुर्र यतीम पर नाजिल किया गया। बल हुम फी शक्किन मिन ज़िक्री, इसलिए हम इसके जिक्र में शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा कुरान जो नाजिल किया गया उसमें भी शुकूक व शुबहात किया करते थे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत में भी वो डिलेमा की कंडीशंस में हुआ करते थे। हालांकि ये मानते थे कि ये दुर्र यतीम है, इन्होंने, ये उम्मी है, कहीं स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं है, पूरी जिंदगी इनकी हमारे दरमियान गुजरी है, कभी कभार इक्का दुक्का एक सफ़र पर चले गए लेकिन सारी ज़िंदगी तो इसी कबीले कुरैश में रहे हैं, लिहाजा हमने कभी इनको पढ़ते हुए नहीं देखा। फिर भी मानते थे कि ये जो किताब और जो आयतें पढ़कर सुनाते निहायत ही फसीह व बलीग हुआ करती है। हमने ना किसी शायर से सुना, ना किसी काहिन से, ना किसी जादूगर से ऐसा कलाम सुना है, ये भी मानते थे। उसके बावजूद शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाया करते थे। और फिर कुछ उनमें से बदकिस्मत ऐसे हुआ करते थे जो कुरान पर एतराज़ किया करते थे और कहते थे कि ये कुरान अगर हक है तो एक बार नाजिल क्यों नहीं किया गया। सब तौरे ज़बूर इंजील एक दफ़ा लिखी लिखाई मिल गई थी, ये कुरान एक ही मर्तबा क्यों नाजिल किया गया। ये नबी बार बार नई नई आयतें पढ़कर क्यों सुनाते हैं। शायद इनको कोई जादूगर आकर बता देता है, कोई जिन्नात आकर इनके कान में सरगोशी कर दिया करते हैं, तो यकीनी तौर पर अल्लाह इनका जवाब दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला इनका जवाब देता है और फरमाता है कि बेशक ये कुरान हमने आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया गया कि इस कुरान को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जरिए मुजाहरा करके भी बताना था, डिमॉन्स्ट्रेट करना था, बताना था कि नमाज इस तरह पढ़नी है, रोज़ा इस तरह रखना है, शरीयत पर इस तरह चलना है, हराम और हलाल क्या होता है। अगर पिछली उम्मतों की तरह एक मरतबा कुरान नाजिल कर दिया जाता तो वो ये कहते कि हाँ इसके फरामीन बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम समीना वासीना कर कर राह फरार इख्तियार कर लेते कि इतने सारे अहकामात एक साथ हम किस तरह शुरू कर सकते हैं, लिहाजा वो राह फरार इख्तियार कर लेते। अल्लाह फरमाता है कुरान को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने की हिकमत ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको कबूल करने की अपने अंदर कोशिश और अपने अंदर साई, अपने अंदर वो जज्ब करने का मादा पैदा कर लें। और कुरान हक है। अगर एक ही मरतबा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और शराब की वानियत के अहकामात आ जाते, शायद उनमें से बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता अहकामात दिए गए और इसके साथ साथ कुफार और मुशरिकीन जो अजीब व गरीब मज़हका ख़ैज़ एतराज़ात किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला बर वक्त ठोस और भरपूर उनका जवाबात दे दिया करता था। लिहाजा कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होने की हिकमतें भी कुरान में बयान की गई और उनके एतराज़ात का रद्द किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम बहुत बड़े सरदार हो, तुम अपने आप को बहुत अमीर व कबीर समझते हो, तो फिर तुम आसमानों पर क्यों नहीं चढ़ जाते, तुम इसके मुकाबिल इस जैसी कोई एक आयत लेकर क्यों नहीं आ जाते। ना तुम आसमानों पर चढ़ सकते हो, ना तुम इस जैसी कोई आयत लेकर आ सकते हो। हम तुम्हें बताते हैं जुंदुम्मा हुनालिक महजूम मिनल अहज़ाब, कि जब बदर में तुम आओगे तुम्हें शिकस्त फाश दी जाएगी। ये प्रेडिक्शन है जो कुरान ने की। और बाद में फिर उन्होंने देखा कि 313 नहित्ते मुसलमानों ने अपने से 3 गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा सामान से लेस, हथियारों से लेस फौज को शिकस्त फाश हो गई और बता दिया कि बेशक कुरान जो कहा करता है ये अल्लाह का पैगाम है और अल्लाह जो बात करता है वो होकर रहा करती है। और फिर कहा कि सुधर जाओ वरना कौम नूह, कौम समूद, कौम आद और अस्हाबुल ऐका कि ये सारे के सारे खंडरात तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। अगर तुम शिर्क से बाज ना आए, नबी मुकर्रम की ग़ुलामी इख्तियार ना की, तो तुम्हारा भी यही हालत और तुम्हारा भी यही हशर होकर रहेगा। लिहाजा नसीहत हासिल कर लो। ये वो पंदे नसाए हैं जो सूरह साद के शुरू में कसम के ज़रिए और दावत मोहम्मदी के हक़ होने के बयान के ज़रिए बयान की गई और हम पर आश्कार की गई। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में हमें इन पर ईमान लाने और फम बिलीव के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।